Everyone, welcome back to my channel. So in this video we will be studying about class 9 chapter number 3, atoms and molecules. So before going into the chapter, we have a brief description about the introduction of atoms and molecule. So too much of it is not required. You have to just know few things before going into studying deeper into atoms and molecules. As we have studied in our previous class or previous chapters that all matter is made up of very small particles. Matters are made up of very small particles. ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ है. नाउ इफ वी कीप ऑन डिवाइडिंग अ मैटर एंड इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग, सपोज एक चौक ही है, उस चौक को अगर हम लोग तोड़ते रहते हैं, इफ यू ट्राई टू ब्रेक द चौक इट विल ब्रेक, एंड इफ यू फर्दर ट्राई टू ब्रेक इट, a time will come when we won't be able to break the chalk further. पाउडर फॉर्म में हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो उससे ऊपर हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते. तो इसी तरह से मैटर को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, इफ़ यू कीप ऑन डिवाइडिंग एंड डिवाइडिंग मैटर, अ टाइम विल कम, अ स्टेज विल कम where we won't be able to further divide matter. That stage is called as atomic stage. एटॉमिक स्टेज. ठीक है, अभी एटॉमिक स्टेज क्या होता है? एटॉमिक स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे मैटर कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. किसी भी सब्सटेंसेस को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. सो इन दिस स्टेज, इन द एटॉमिक स्टेज, मैटर कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. मैटर कैन नॉट बी डिवाइडेड further. So you have to know this. So I am reading what is written. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India. Around 500 BC, an Indian philosopher Maharishi Kanan postulated that if you go on dividing matter, matter को हम लोग हिंदी में पदार्थ बोलते हैं. Matter in Hindi is called as पदार्थ. Matter in Hindi it is called as पदार्थ. P-A-D-A-R-T-H. पदार्थ. This is a Sanskrit word meaning पदार्थ. Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. So, किसी भी मैटर को अगर हम लोग तोड़ते रहते हैं, सपोज ये मैटर है या चौक ले लिया, कुछ भी ले लिया हम लोगों ने, उसको अगर तोड़ते रहते हैं, उसके बाद ऐसा एक टाइम आएगा जिसके ऊपर और जिसके फर्दर वी कैन नॉट बी एबल टू डिवाइड दैट सब्सटेंस. सो दैट स्टेज इज कॉल्ड एज एटॉमिक स्टेज. He named these particles as परमाणु. So that stage, इसको डिवाइड करते लास्ट में जो स्टेज आता है जिससे और हम लोग ज़्यादा उसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं, उस स्टेज को हिंदी में कहा गया है परमाणु. परमाणु. इसी वर्ड परमाणु से ही इंग्लिश का वर्ड एटॉम्स आया है. एटॉम्स. सो एटॉम इज द smallest indivisible unit of a matter, you can say. Atom क्या होता है? It is first of all smallest indivisible unit of matter. Unit of matter. Unit मतलब क्या? Small piece. So it is the smallest indivisible unit of matter. तो मैटर को हम लोग फिर से मैं बोल रहे, मैटर को अगर हम लोग फिर से तोड़ते रहते तो ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हम मैटर को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं परमाणु या एटॉमिक स्टेज. सो ओवरऑल वी कैन से दैट एटॉम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ मैटर. स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट ऑफ मैटर. जैसे हम लोगों ने सेल में पढ़ा था कि सेल इज द यूनिट ऑफ living organism. It is the smallest unit of
लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी तरह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स जो है दैट इज एटॉम। Another Indian philosopher, Pakuda Katyama, elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in combined form, which gives us various forms of matter. So he also said that कुछ particles, कुछ atoms ऐसे हैं जो combination में रहते हैं किसी और के साथ या same atoms के साथ। Around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be further divided. Same वही बात है। Call these particles as atoms, meaning indivisible. So the meaning of atom is indivisible. यहाँ पे मैंने लिखा है the meaning of atom is indivisible. तो परमाणु का मतलब होता है जिसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटॉम का भी सेम मीनिंग है कि जिसको वो चीज़ या वो यूनिट जिसको हम लोग फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज एटॉम। All this was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till 18th century. तो तब तक science was not so much modernized, therefore these things were only theoretical, philosophical, सिर्फ बोला ही गया था इनके बारे में। तो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था कि मैटर को डिवाइड करके एकदम फर्दर लास्ट स्टेज में हम लोग को एटम्स मिलता है एंड दीज एटम्स आर इंडिविजिबल। दीज थिंग्स वर फिलोसफिकल, थियोरिटिकल, सो नथिंग वाज प्रूव्ड फॉर दिस। By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds, naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. So by the end of 18th century के लास्ट में क्या हुआ, recognize the difference between elements and compounds. तो उसमें साइंटिस्ट लोगों को एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, इसके बारे में पता चला। The elements is the purest form of matter and compounds are what? They are combination of matter or they are combination of elements. And naturally became interested in finding out how and why elements। तो उन्होंने फिर रिसर्च किया कि एलिमेंट्स क्यों कंबाइन होते हैं। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। सो ये H2O ही क्यों फॉर्मूला है, दूसरा क्यों नहीं है, HO2 क्यों नहीं है या 2HO क्यों नहीं है। सो दे स्टार्टेड स्टडिंग फॉर दिस। सो इफ़ यू टेक वाटर फ्रॉम एनीवेयर, if you take water from anywhere, you take water from India, you take water from Australia, you take water from England, from anywhere you take water, the formula is same. Pure water formula is H2O। ये आप कहीं से भी वाटर ले लो, पानी कहीं से भी ले लो, रिवर से ले लो, ओशन से ले लो, यहाँ से ले लो, नाले से ले लो, फॉर्मूला इज सेम H2O। या इंडिया से लो, ऑस्ट्रेलिया से लो, कहीं से भी ले लो, यही फॉर्मूला है। तो फिर साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि कैसे ये कंबाइन हो गया, ये H2O जो बना है कैसे बना है, क्यों H2O ही बना है, क्यों दूसरा फॉर्मूला नहीं है। सो बेस्ड ऑन दिस वी इन क्लास 9 वी नीड 2 बेसिक लॉज मतलब कानून। दो लॉज हम लोगों को पढ़ना है जो है दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दीज आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली 5 लॉ होता है। तो 5 लॉ हम लोग को नहीं चाहिए 9 में, वी नीड ओनली 2 लॉज। तो 2 जो लॉ है, पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये 2 लॉ हम लोगों को चाहिए। अभी ये 2 लॉ बेसिकली क्या बोलता है, पहले तो वो जानना होगा। दीज 2 लॉज स्पीक्स अबाउट केमिकल कॉम्बिनेशन, नॉट फिजिकल। केमिकल कोई भी सब्सटेंस जब केमिकली रिएक्ट करता है, वो substances will be governed by these 2 laws. Any 2 substances, any one substance, when it undergoes chemical changes, कोई भी substance जब chemical change undergo होगा
मतलब कि कुछ अलग ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या कुछ अलग ही कुछ बन रहा है, तब उस सब्सटेंस जो है वो दो लॉ से गवर्न होगा, ये दो लॉ। तो थोड़ा बहुत रिएक्शन के बारे में जानते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जानना होगा कि रिएक्शन क्या होता है। लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज अ रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज टेक्निकली व्हाट इज अ रिएक्शन। रिएक्शन मीन्स केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है, सपोज मैं लेता हूं यहाँ पे कुछ भी A प्लस बी, ए एक सब्सटेंस है, बी दूसरा सब्सटेंस है, दोनों मिलके चलिए मान लेते हैं बन गया AB, ठीक है। अभी इस साइड जो है, दिस साइड, द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड, द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। ये तो थोड़ा बहुत हम लोगों को जानना होगा। दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। क्यों प्रोडक्ट? क्योंकि ये दोनों आपस में मिलके इसको बनाया है, ये दोनों आपस में मिलके इसको बनाया है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। अभी बात यह है कि ये जो दिस AB विच इज देयर, इट इज नॉट सिमिलर टू B और A। AB जो है इट मे और मे नॉट रिजेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ B एंड A। A का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ A माइट नॉट बी देयर इन द प्रोडक्ट AB एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ B माइट नॉट बी देयर इन द प्रोडक्ट AB, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इट इज देयर इज अ कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। दिस AB is completely a new product. This is completely a new product. Okay, so इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी है वो इसके साथ ज़रूरी नहीं है कि मिलेगा, या कभी कभी 99% चांसेस आर देयर द प्रॉपर्टीज ऑफ AB will not be similar to the properties of A and B. फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण स्वरूप हम लोग लेते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन, ठीक है। Na का मतलब होता है सोडियम, साइंटिफिक नेम नाइट्रियम है इसलिए हम लोग डिनोट कर रहे हैं Na से, और Cl होता है क्लोरीन। जनरली नीचे लिखा जाता है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये बनता है NaCl। छोटा एक रिएक्शन देखते हैं पहले। अभी देखिए सोडियम जो है इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट और इट्स अ वेरी रिएक्टिव substance, and chlorine is also very harmful. It is also reactive and also harmful. दोनों ही harmful है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम क्लोराइड, ये तो हम लोग डेली खाते हैं, कहाँ? सॉल्ट। दिस इज कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग खाने में डालते हैं, दैट इज कॉमन सॉल्ट, जो सी से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बाई प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। सी वाटर में जो नमक होता है, दिस इज नमक, दिस इज वॉज कॉमन सॉल्ट, नमक। तो देखिए इसका जो दिस इज क्रिस्टलाइन, दिस इज नॉट क्रिस्टलाइन इधर, दिस इज क्रिस्टलाइन। ओके, ये तो चमकीला होगा, देखने में चमकेगा, डायमंड के जैसा होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इन दोनों का तो ऐसा है नहीं। तो दिस इज कंप्लीटली अ न्यू प्रोडक्ट। द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये जो कॉमन सॉल्ट का प्रॉपर्टी है, ये इन दोनों से मिलता ही नहीं है। ये दोनों रिएक्ट करके कंप्लीटली एक नया प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो यही है बेसिकली हम लोग का रिएक्शन। जनरली एक साइड में रिएक्टेंट होता है, दूसरा साइड में प्रोडक्ट होता है। सो दिस इज़ अ रिएक्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जितने भी दुनिया में रिएक्शन हो रहे हैं कुछ भी रिएक्शन ले लेते हैं, कुछ भी रिएक्शन जो हो रहा है कहीं पे भी हो रहा है, वो दो लॉ पे गवर्न होगा। दोज all the reaction in this entire universe will be governed by two laws. First is law of conservation of mass, second is law of constant proportion. So till now I will be teaching you law of conservation of mass, जो हम लोग का पहला लॉ है NCERT में दिया, ठीक है। सो अभी जो है वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज द फर्स्ट लॉ इन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आई विल रीड द NCERT, बट बिफोर दैट लेट अस नो व्हाट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्चुअली स्टेट्स।
First, it was given by Antoine Lavoisier. The law of conservation of mass was established. किसने कहा था इसके बारे में पहले? Antoine Lavoisier. पहली बात. Second, whenever there is a क्या अभी क्या बोला है इसमें? What is law of conservation of mass? Whenever there is a physical or a chemical change, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. Whenever there is a physical or a chemical change, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. तो reactant में जितना ग्राम substance है, product में भी उतना ग्राम ही substance आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम नीचे वाला कंसिडर करेंगे। पहले सिंपल एक देखते हैं कि मान लेते हैं ए प्लस बी, पिछला वाला जो सिंपल रिएक्शन था ये बन गया ए बी। मान लेते हैं ए है हम लोगों के पास 10 ग्राम, बी है हम लोगों के पास 5 ग्राम। तो ए बी जो बनेगा इसमें कितना रहेगा? 15 ग्राम। ए बी जो बना है इसमें कितना रहेगा? 15 ग्राम। या अगर इसको उल्टा भी करते हैं, वी हैव ए बी विच इज़ 15 grams and then it has decomposed. ये डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज हो के A प्लस बी बन गया। इसी रिएक्शन को उल्टा करके लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि A हम लोग को मिला है 10 ग्राम, B फिर 5 ग्राम। तो 10 plus 5 it is 15, here also 10 plus 5 it is 15। सो 15 यहाँ पे डिवाइड हो गया, फिर 10 ग्राम, फिर 5 ग्राम, यहाँ पे 10 5 मिलके 15 ग्राम। सो इट इज सेम। So whenever there is a physical or a chemical change, the total mass, how much was the total mass? 15 gram. The total mass was 15 gram. 10 plus 5 is 15 gram. The total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. Reactant में ये reactant है हम लोगों का. This is the reactant and this is the product. So total mass of the reactant. Reactant में total mass कितना है? 15 ग्राम। प्रोडक्ट में टोटल मास कितना आया? 15 ग्राम। सो सेम, देयर इज नो चेंज। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 15 ग्राम है तो यहाँ पे 20 ग्राम आ जाएगा, नहीं आएगा। तो टोटल सेम रहेगा। सेकेंड, देयर इज, तो इसका मतलब क्या? देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ मास इन अ रिएक्शन। देयर इज नो गेन और लॉस। ऐसा नहीं है कि मास कहीं पे लॉस्ट हो गया या नया कुछ मास क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं होता। जितना मास है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में उतना ही मास आएगा। जितना रिएक्टेंट में मास है उतना प्रोडक्ट पे ही मास आएगा। ऐसा नहीं है कि मास कुछ ख़राब हो जाएगा या कुछ कहीं उड़ के चला गया, गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वहीं आएगा। ये बात अलग है कि कभी गैस हो गया तो गैस बन के उड़ गया, तब हम लोग उसका एस्टिमेट निकालना होता है कि कितना गैस बन के उड़ा है, ठीक है। सो दिस लॉ इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन matter can neither be created nor destroyed. There is law of conservation of matter. Law of conservation of matter, that is matter can neither be created nor destroyed. पूरे ब्रह्मांड में जितना मैटर है उसको नया करके हम कुछ नया मैटर नहीं बना सकते। नया मैटर नहीं बना सकते। जो मैटर है वही रहेगा। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो आई विल बी रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। पेज नंबर कहाँ गया? पेज नंबर 31, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है हम लोगों को। यू कैन रीड दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर एक्टिविटी हम लोग करेंगे तो उसमें सेम हम लोगों को मालूम चलेगा कि ये वाला जो यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिखा है, जो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये वाला शायद नहीं है आप लोग के यहाँ, बट दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड जो भी है यहाँ पे। तो चलिए इसको ही देखते हैं क्या लिखा गया, क्या है इसमें। Here in this reaction what is stated is that we have 100 grams of calcium carbonate. This is calcium carbonate, चूना, calcium carbonate जिसे हम लोग बोलते हैं चूना या लाइमस्टोन। चूना का जो पत्थर है उसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट।
सो वी हैव 100 ग्राम, 100 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको फिर हीट किया हम लोगों ने। अब वी हैव हीटेड 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, किसी भी एक कटोरे में ले लिया, 100 ग्राम कैल्शियम चूना ले लिया, 100 ग्राम, उसको फिर नीचे से हीट किया। इसी तरह का कुछ सेटअप होगा, यहाँ पे किसी कटोरे में ले लिया, यहाँ पे हीट है, सो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, सो हीट करने लगे हम लोग। उसके बाद क्या होता है, ये देखा गया है कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ 56 ग्राम। कितना ग्राम? 56। और कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बन के 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, काला धुआं जो है वो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। सो 100 ग्राम्स यू ऐड नाउ, टोटल हम लोग का रिएक्टेंट का मास कितना है? रिएक्टेंट का मास है हम लोगों का 100 ग्राम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शायद ये कैमरे में ना आए, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको। तो रिएक्टेंट में कितना था? रिएक्टेंट में था हम लोगों का 100 ग्राम्स CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट था 100 ग्राम। प्रोडक्ट में क्या क्या आया? प्रोडक्ट में आया 56 ग्राम्स क्या आया? कैल्शियम ऑक्साइड। 44 ग्राम्स क्या आया हम लोगों का? कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसको अगर टोटल करेंगे हम लोग, मिल जाता है 100 ग्राम्स। सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी, दिस इज द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में भी हम लोग को इस दोनों को ऐड करके मिला है 100 ग्राम्स। टोटल इज 100 ग्राम, यहाँ पे भी 100 ग्राम। तो कहीं पे कुछ लॉस नहीं हुआ या कुछ नया नहीं बना, तो 101 ग्राम भी नहीं हुआ यहाँ पे। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कुछ भी अगर रिएक्ट करता है, चाहे वो कंबाइन ही हो रहा है या नया कुछ सब्सटेंस बन रहा है, तो उसमें ओवरऑल जो मास है रिएक्शन का वो सेम रहेगा। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, फिर 56 ग्राम 44 ग्राम करके निकला है, ठीक है। अगर इसी को ही फिर रिएक्ट करवाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, तो हम लोग को क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट ही मिलेगा 100 ग्राम। ओके, सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में, आप इसी को लिखिए। यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस along with this example. I hope this is clear now. So next I will moving with law of constant proportion. Till then you take screenshot of this. पहला वाला किसने एस्टेब्लिश किया था? एंटोनी लेवोजियर। तो इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किसने एस्टेब्लिश किया? इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट। What does law of constant proportion say? It says every pure compound always containing the same element combined in same proportion by mass. इसका मतलब क्या है? Every pure compound, suppose pure water ले रहे हैं हम लोग, H2O, this is what? Pure water, एकदम pure distilled water, pure, ठीक है। Every pure compound, so water, this is a compound, always contains the same element combined in same proportion by mass. So पानी हम लोग कहीं से भी ले, whether we take from river, whether we take from pond, whether we take from rain, कहीं से भी पानी है, इंडिया से ले, ऑस्ट्रेलिया से ले, बाहर से ले, कहीं से ले, यहाँ से ले, वहाँ से ले, पूरे यूनिवर्स में कहीं से भी ले, उसका फॉर्मूला सेम है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन and 1 ऑक्सीजन combines the atom of 2 hydrogen and 1 oxygen combines to form 1 molecule or 1 compound of water, 1 molecule of water, ठीक है। So इसका मतलब क्या होता है कि chemical composition of compound is definite, केमिकल फॉर्मूला जो है कंपाउंड्स का वो सेम है। पिछले एग्जाम्पल पे भी हम लोगों ने देखा ना, NaCl सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट है, सोडियम और इसमें क्या है? क्लोरीन। एक सोडियम है इसमें, दूसरा क्या है? क्लोरीन। सेम, ये हम कहीं से भी ले इसको सेम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही इजी एग्जांपल ये वाला, CO2, कहीं से भी हम लोग ले कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ले, वहाँ से ले, कहीं से भी ले, उसमें क्या है? एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन एटॉम है, 2 ऑक्सीजन एटॉम है। तो ये होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, व्हिच सेज एवरी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट, एवरी प्योर कंपाउंड, वाटर H2O, कहीं से भी H2O।
कंबाइंड इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अभी मास के साथ हम लोग डील करेंगे। अभी तक हम लोगों ने नंबर ऑफ एटॉम्स के साथ बात किया, नाउ वी विल बी टॉकिंग विथ मास, मास से रिलेट करेंगे। तो ये देखा गया है कि पहले हम वाटर का एक एग्जांपल लेता हूँ, H2O। H2O में देखा गया है कि सपोज 9 ग्राम, इफ़ वी हैव 9 ग्राम ऑफ H2O, हम लोगों के पास अगर 9 ग्राम H2O है तो इसमें क्या रहेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका रेशियो कितना बन रहा है, 1:8। तो वाटर का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो क्या है, 1:8। ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है, कंबाइनिंग रेशियो, इट इज 3:8। कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, इधर बाय बर्निंग कोल, कोयला जला के लीजिए, या हीटिंग लाइमस्टोन, जो पिछला वाला एक्सपेरिमेंट था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो दोनों कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लो तो जो मास का जो रेशियो है, इट इज 3:8। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन NCERT। Till then you take the screenshot of this. Yes, we have now law of constant proportion. Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of 2 or more elements, and each such compound had the same elements in the same proportion, irrespective of where the compounds came from and who prepared it. कहीं से भी कंपाउंड आ रहा है या किसी ने भी बनाया हो तो उसका फॉर्मूला जो है सेम है। इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ, अगर 9 ग्राम हम लोग ले रहे हैं वाटर, तो इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 8 ग्राम। तो वही जो है H2O, अगर इसको, ये 9 ग्राम है, इसमें जो पहला वाला था, इसमें 1 ग्राम क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 8 ग्राम। ठीक है। सो 8 + 1 9, सो ये सेम हो गया। ठीक है। In a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. Whatever the source of water, thus 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are obtained. तो वाटर को अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो वी विल गेट 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली इन एमोनिया, नाइट्रोजन एंड एमोनिया का फॉर्मूला है NH3। एमोनिया फॉर्मूला इज NH3। ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब हम लोग एटॉम्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा क्यों NH3 है, कैसे है। तो NH3 में कितना रेशियो है, मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3। तो अगर हम लोग 17 ग्राम एमोनिया ले रहे हैं तो इसको डिकम्पोज करने के बाद 14 ग्राम नाइट्रोजन निकलेगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन विल कम आउट, प्लस 3 grams of hydrogen will come out. 3 grams of hydrogen will come out. This led to the law of constant proportion, which is also known as law of definite proportion. इसका और एक नाम है constant proportion का, law of definite proportion. This law was stated by Proust. मैंने लिखा है Joseph Proust. In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just philosophical. तो पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था कि after going on dividing matter into after dividing matter, a stage will come when the matter cannot be further divided. That stage is called as atomic stage. तो तब जो था ये फिलॉसफी या थ्योरी में था, अभी इसको प्रूफ करना था। तो प्रूफ पहले किसने किया था वो हम लोग देखेंगे।
Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was still then just philosophy. He took the name atom as given by the Greeks and said that the smallest particle of matter are atoms. The smallest particle of matter are atoms. ठीक है. His theory was based on law of chemical combination. Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion. तो अभी डेल्टन ने क्या क्या कहा? ऑल मैटर पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है ये 6 पोस्टुलेट्स हैं यहाँ पे, 5 याद करने से भी होगा. देखते हैं क्या लिखा है डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल में. पहला तो है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज एटॉम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी, ये जो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, ये इतने सारे जो, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ. कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, सपोज सोडियम के साथ क्लोरीन का एक रिएक्शन होके बन गया NaCl. ठीक है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है. सोडियम का नाम होता है नाइट्रियम, साइंटिफिक नेम तो Na लिखा जाता है, इसलिए सोडियम साइंटिफिक नेम इज नाइट्रियम, NaTrium. This is chlorine. This reacted to form sodium chloride common salt. Sodium chloride. So what is sodium and what is chlorine? These are atoms. These are atoms. ये दोनों atoms है. तो reaction कौन करवाता है? Reactions are done by atoms. Reactions are done by atoms. जो भी हम लोग अभी से जितना भी reaction लिखेंगे, whatever reactions we will write from now onwards, those will be all atoms, all atomic reactions. जितने ये सारे सोडियम, क्लोरीन, NaCl, ये सारे एटॉम्स हैं. ठीक है, इसमें सोडियम एटॉम है, क्लोरीन एटॉम, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल बन गया. सोडियम क्लोराइड इज अ मॉलिक्यूल. 2 एटॉम्स, 2 एटॉम्स का जो मिलना है, उसी मिलने से क्या बन रहा है? एक सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल. दैट विल स्टडी नाउ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. Atoms are indivisible particle which cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. So atoms को हम, it is indivisible. Indivisible, इसको ना हम लोग मार सकते हैं ना बना सकते हैं. Just like महादेव, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं. तो there is neither a starting nor an end. So same thing with atoms. So we cannot create atom, neither we can destroy atoms. So these are few characteristics of atoms which you have to remember. Smallest particle of the matter, indivisible, okay, which take part in chemical reaction. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. So अलग अलग substance का जो अलग अलग atoms है, उनका properties अलग रहता है, size अलग रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहता है. ठीक है, सपोज सोडियम का, क्लोरीन का जो एटॉम है और सोडियम का जो एटॉम, दोनों अलग अलग है. दिस टू आर डिफरेंट. केमिकली ऑल्सो दे आर डिफरेंट एंड साइज इज ऑल्सो डिफरेंट, मास इज ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स. सो स्मॉल होल नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे होल नंबर्स में कंबाइन होंगे. ठीक है, ये जो फॉर्मूला NaCl, सपोज H2O, देखिए 2 है इसमें, ऐसा नहीं कि H2.00 या 2.10, ऐसा नहीं होगा. देयर हैज़ टू बी होल नंबर फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है, जितने स्मॉल होल नंबर्स होता है उसमें, इतना कुछ बड़ा नहीं है. ठीक है, ये जो सिंगल डिजिट में बेसिकली आप लोगों को जो पढ़ना है वो सिंगल डिजिट में पढ़ना है. जैसे CaCO3, ये देखिए 3 है, ऐसा नहीं है कि CaCO3.2, ऐसा नहीं है. CaCO3, देयर विल बी नो डेसिमल. सो होल नंबर, जो भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और उस जो इस फॉर्मूला के बीच में या बाहर में जो भी नंबर लगेगा, दैट विल बी इन होल नंबर. The relative number of and kinds of atoms are constant in a given compound. So water, यही मैंने बोला है, H2O कहीं से भी लो फॉर्मूला सेम है, NaCl कहीं से भी लो, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला सेम है. So this is the first part of the video that I have made on atoms and molecule. I hope you have understood. Next that we have is what is atom and what are molecules.
So these things I will make another video, otherwise you will become bored by watching a video of 2-3 hours. So till then you stay safe, see the video, see if you have any problem. If you have problem, you can comment me down. Okay, thank you.